طلباء و طالبات، گزشتہ جماعت میں ہم نے کچھ معلومات حاصل کی تھی، اسی کا ہم آج اعادہ کرتے ہیں۔ آپ کو اس تصویر میں کن علامات گزشتہ معلومات کی بنا پر میں آپ سے چند سوالات کروں گا، امید ہے آپ لوگ جوابات دیں گے۔ کون سی علامتیں اس میں نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ جمع کی علامت ہے، تو چلیے ہم جمع کا عمل کرتے ہیں۔ اوپر 4 جمع 2 مرچیاں ہے تو کتنی ہوں گی؟ اسی طریقے 3 جمع 2 کتنی مرچیاں ہوں گی؟ اسی طریقے سے 4 جمع 3 یہ کل کتنی مرچیاں ہوں گی؟ ویری گڈ۔ اس طریقے سے دوسری تصویر میں یہاں پر کچھ گیندیں نظر آ رہی ہے، پہلے میں 6 اور دوسرے میں 5، تو 6 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ اسی ہم جمع کا عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کچھ پھول نظر آ رہے ہیں، ان پھولوں کی جمع کرنا ہے، اور ایک یہاں پر ایک ہارٹ کی شکل کا دیا ہوا ہے 5، اور یہ جمع 7، 5 اور 7 جو ہوتے ہیں آگے جو باکس دیے گئے ہیں ان میں ہمیں ان کی عدد کو لکھنا ہے۔ اب چلیے ہم اسی عمل کو حل کر کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ جمع کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جمع کا عمل کس طرح سے کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم اعادے کے طور پر حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ریاضی کے 2 شاخوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے کے لیسن میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ریاضی کی 2 شاخیں ہیں، ایک الجبرا اور ایک جیومیٹری، جسے ہم علم انسا بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے علم انسا کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی، جیسے نقطہ، قطع خط، شعاع یا قطع خط کے ذریعے زاویے کیسے بنتے ہیں، اس کے متعلق پھر ہم نے زاویے کی اقسام دیکھی تھی۔ اب ہم الجبرا کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ہم نے علم انسا کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، کچھ اشکال کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اب ہم الجبرا کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کو یہاں پر بورڈ پر کچھ علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان علامتوں کس کی علامت ہے یہ پہچان سکتے ہیں؟ بالکل پہچان سکتے ہیں۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اور یہ گڈ، یہ جمع کی علامت ہے۔ اب مجھے بتا سکتے ہیں جمع کرنا یعنی کیا؟ جمع کرنا یعنی کیا؟ جمع جسے انگلش میں ایڈیشن بھی کہتے ہیں، تو جمع کرنا یعنی کیا؟ جمع کرنا یعنی ملانا۔ بس کرو کہ ہم یہاں پر میرے پاس میں یہ 4 انگلیاں ہیں، اور اس میں اور میں 2 انگلیاں یہاں پر ملا رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، تو کتنی انگلی ہو گئی؟ یہ 6، یعنی کہ ملانا، جوڑنا۔ تو یہاں پر 4 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 6۔ تو آج ہم جمع کے متعلق ہی معلومات حاصل کریں گے۔ تو آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہی ہے جمع اور تفریق۔ تو ہم جمع اور تفریق اس سبق میں آج جمع کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں گے، جسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ جمع کو انگلش میں ایڈیشن کیا جاتا ہے، ایڈیشن کہا جاتا ہے۔ جمع یعنی ایڈ کرنا۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہاں پر الجبرا میں جمع اور تفریق، سب سے پہلے جمع۔ اب جمع کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جمع کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب جمع کا مطلب کیا ہے؟ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا یا یکجا کرنا۔ ملانا یا جمع کرنا، یہ جمع ہی ہوتا ہے۔ اب کیسے؟ ایک مثال کو دیکھیں گے ہم یہاں پر۔ فرض کرو کہ میرے پاس 2 گیند ہے، ٹھیک ہے، 2 بال یا 2 گیند ہے۔ اب یہ 2 گیندوں میں میں اور 3 گیندیں ملا رہا ہوں، 1 2 3، 1 2، یہ 2 گیندیں پہلے آلریڈی میرے پاس میں ہیں، اب اور اس میں 3 گیندیں ملا رہا ہوں، تو کتنا ہو گیا؟ دونوں کو اگر ہم ملا دیے، ایک ساتھ ملا دیے تو کتنا ہو گیا؟ یہ 2 گیندیں ہیں جمع، یہ دونوں گیندوں کو یہاں پر ملا رہا ہوں، تو کتنا ہو گیا؟ 5۔ ہم آسانی سے کتنے بول دیتے ہیں؟ 5 گن کر ہم بتا سکتے ہیں 5، لیکن ہم کو اسے حل کرنا ہوگا۔ اگر ریاضیاتی صورت میں ہمیں لکھنا ہے، فرض کرو کہ یہاں 2 گیندیں دی گئی، تو یہاں پر 2، ٹھیک ہے، جمع، یہاں پر کتنے گیندیں دی گئی؟ 3 گیندیں۔ اب 2 میں 3 ہم ملا رہے ہیں، یہ 2 1 2 3 4 5، تو جواب کتنا آ رہا؟ مساوی 5۔ اس طرح سے اسے ریاضیاتی صورت میں ہمیں لکھنا ہوگا، تو یہ جمع کا عمل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ یہ جمع کا عمل۔ اب دوسرا تفریق کرنا یعنی گھٹانا یا
कम करना, घटाना या कम करना। अभी हमें पता है इसे इस तरह की अलामत से इसे ज़ाहिर किया जाता है, नफ़ी की अलामत से इसे ज़ाहिर किया जाता है। अब फर्ज करो कि यही मिसाल हम ले लेते हैं। मेरे पास 3 गेंद है। अब ये 3 गेंद में से 2 गेंद मुझे एक बच्चे को देना है, ठीक है। इसमें से 2 गेंद मैं एक बच्चे को देता हूँ, 1 2, ठीक है। तो कितनी बची यहाँ पर? 1, ठीक है। ये आसानी तस्वीर देखकर हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हमें इसे रियाजती सूरत में लिखना होगा। अब कैसे? जैसा कि यहाँ पर 3 है, नफ़ी की अलामत लेंगे नफ़ी, और अब एक बच्चे को कितनी गेंदें देना है? हमें 2 गेंदें देना है। अब 3 में से 2 हमको क्या करना है? मनफी करना है, यानी कि कम करना है। 3 में से 2 हमने मनफी किया तो कितना बचता है? 1। तो ये हो गया तफरीक का अमल। तो ये जमा और तफरीक, यही हमारे आज का सबक है, जमा और तफरीक। हम जमा और तफरीक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हमने गुज़िश्ता जमात में जमात चाहरों में जमा और तफरीक के सवालात को हल किया है। अभी हम 1 इंची आदाद, 2 इंची आदाद, 3 इंची आदाद, ऐसे 4 5 और 6 इंची आदाद की जमा कैसे की जाती है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरीके से हम और मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि जमा का अमल किस तरह किया जाता है। देख चुके हैं कि अगर हम 1 इंची आदाद को 1 इंची आदाद से जमा करेंगे, 2 जमा 2, ये 2 है, इसमें 2 जमा करना है। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 2 में 2 जमा करें तो 4। ये हो गए 1 इंची आदाद। 1 इंची आदाद की जमा हमें पता है। उसी तरीके से 2 इंची आदाद है, ये 21 है, और जमा ये 12 है, ठीक है। मसावी कितने? अब ये आड़ी तरतीब में लिखे हुए हमको क्या करना है? खड़ी तरतीब में लिखना है। उसकी तरतीब में लिखे हुए हमें उसको अमूदी तरतीब में लिखना है। तो पहले यहाँ पर 21 लिख रहे हैं हम लोग, और दूसरा लिख रहे हैं 12। अब इनकी जमा कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 3, 2 और 1 3, ठीक है। तो जवाब कितना आ रहा है यहाँ पर? 33। यानी कि 2 इंची आदाद की 2 इंची आदाद से जमा करें हमने, 1 इंची आदाद की 1 इंची आदाद से। अब उसी तरीके से हम 3 इंची आदाद की जमा 3 इंची आदाद से जमा करें, ठीक है। उसी तरीके जिस तरीके से हमने इसे हल किया, उसी तरीके से हमको इसे भी हल करना है। 333 जमा 110, ये जमा की अलामत, ठीक है। अब 3 में सिफर जमा करें तो 3, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, तो कितना जवाब आ रहा है? 443। तो हम यहाँ जवाब लिख सकते हैं 443। अब हमने 1 इंची अदद की 1 इंची अदद से, 2 इंची अदद की 2 इंची अदद से, 3 इंची अदद की 3 इंची अदद से हमने यहाँ पर जमा की। लेकिन ये तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे इस बात में कन्फ्यूज़ होते हैं कि 3 इंची आदाद की 2 इंची आदाद में जमा करना। कुछ बच्चे इसमें गलत सवाल हल करते हैं। अब कैसे? मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो यहाँ पर ये 3 इंची अदद है, ठीक है, 330, और ये 2 इंची अदद इसमें जमा करना है, ठीक है। अब इस बात का ख्याल रखना कि जब हम ये सवालात हल कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम 333, ठीक है। अब ये जो नीचे 2 इंची अदद है, इसको इकाई के मुकाम के नीचे लिखना है। यहाँ इसका इकाई मुकाम क्या है? सिफर है। इसका इकाई मुकाम क्या है? 3 है। तो उसको इकाई मुकाम के नीचे रख रहे सिफर, और ये 2 दहाई मुकाम के नीचे, तो इसको दहाई मुकाम के नीचे रख रहे 2, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ सिफर भी लगा सकते हैं, और यहाँ जमा की अलामत लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जमा करेंगे, 3 के 3, 3 और 2 5, 3 सिफर 3, तो जवाब कितना आ रहा? 353। लेकिन कुछ बच्चे करते क्या है, बताता हूँ आपको, कि 333। अब इसमें 20 जमा करना है, इस तरह से 20 जमा करते, ठीक है। और जमा करते 3 के 3, 3 के 3, 3 और 2 5। अब बताओ ये सवाल सही है या ये सवाल को हमने सही हल किया? कौन सा तरीका सही है? ये ऊपर वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका सही तरीका है, और ये नीचे का तरीका क्या है? गलत तरीका है। कभी भी इस बात का ध्यान देना कि जब भी हम कोई कम इंची अदद को जमा कर रहे हैं, तो याद रखना इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई आना चाहिए। अगर आगे कोई अदद नहीं, यहाँ 2 इंची अदद से हम जमा कर रहे थे, तो यहाँ पर इकाई के नीचे सिफर आया, दहाई के बाद इकाई के बाद इकाई में सिफर, दहाई में 2, और सैकड़े में कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ सिफर लगाया। सिफर नहीं भी लगा सकते आप, तो डायरेक्टली आप जमा की अलामत भी लगा दें और सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अब हमारी अगली मश्क नंबर 7 हल करेंगे। हमने मिसालें देखी थी, अब हम मश्क नंबर 7 के कुछ सवालात हल करेंगे। तमाम तलबा बगौर मुशाहिदा करेंगे, फिर आप अगले सवालात आपको नीचे की कितनी रकम है? 10,648। अब 56,427 में 10,648 हमको क्या करना है? जमा करना है। ये 7 और ये नीचे 8 दिए गए, 7 और 8 कितने होते हैं? 15, ठीक है, 15 होते हैं। तो 15 के 15 लिखेंगे यहाँ पर? नहीं,
15 के 5 हासिल का आया 1, ठीक है। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, 3 और 4 7, गुड। अब ये 4 में 6 जमा करना हमको, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1, ठीक है। क्या 10 के 10 लिखेंगे यहाँ पर? नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 का सिफर हासिल का आया 6 और 1 7, 7 में सिफर जमा करें तो 7, 5 और 1 6। अब कितना जवाब आया? इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कितना जवाब आया? 67,075। आया आपके समझ में? तो इस तरह के जमा के सवालात हमको हल करना है। अब इसमें हम जो सबक पढ़ रहे हैं जमा और तफरीक, अब ये जो हो गई थी इबारती ये जो तो रियाजियाती सूरत में लिखी गई थी, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब कुछ मिसालें इबारती शक्ल में दी जाएंगी। अब कैसे ही, तो उसकी हम मिसाल देखेंगे। इबारती कैसे है, इबारती सवाल कैसे हल करते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करो कि मैंने एक मोबाइल 5,690 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। 5,690 रुपये में ख़रीदना है मुझे एक मोबाइल। अब मेरे पास कितनी रकम है? 5,000, ठीक है। अब मुझे कितने चाहिए? और मेरे पास 5,000 रुपये है और मुझे 5,990 रुपये, 990 की ज़रूरत है। तो 5,000 और 990 जमा करें तो कितना होता है? 5,990, ठीक है। तो इस तरह से इबारती सवालात है। इस इबारती सवालात को हम देखेंगे अगली मश्क में। हमें बताया गया है कि किस तरह से हल करते हैं। हम एक और मिसाल के ज़रिए से जमा के कुछ सवालात हल करेंगे। मिसाल में हमने देखा कि पहले हमने देखा 3 इंच की अदद, 2 इंच की अदद की जमा करके देखिए किस तरह से उसे तरतीब में लिखा जाता है। अब खाके के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से उनको तरतीब में लिखते हैं। लेकिन हर सवाल के लिए ये खाका होना ज़रूरी नहीं है। ये खाका आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके कि तरतीब से आदात को किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहली रकम कौन पढ़ेगा? ये कितनी रकम है? इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार क्या है? हज़ार पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 5,612, ठीक है। अब इकाई में क्या है यहाँ पर? 2, ठीक है। दाही में क्या है? 1, सैकड़े में क्या है? 6, हज़ार में क्या है? 5। अब आगे कुछ अदद है क्या? नहीं है। अगर बॉक्स खाली भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरी रकम। अब ये लेफ़्ट साइड से हम देख रहे हैं, इस मिसाल की जो लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं हम, लेफ़्ट साइड से इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पहली रकम हो गई, ये दूसरी रकम हो गई। अब दूसरी रकम की इकाई में क्या है? 2 है, ठीक है। दाही में क्या है? 9, सैकड़े में 8, हज़ार में 7, 10,000 में 6 और लाख में 3, ठीक है। अभी देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। अब ये तरतीब से हमने इसको लिख दिए। क्या कर दिया? इसको तरतीब से हमने लिख दिए। अब इसको हमको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। 2 और 2 4, ठीक है। उसी तरीके से 1 में 9 जमा करें तो कितना होता है? 10। तो ये हम 10 लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 का यहाँ क्या लेंगे? सिफर हासिल का आया 1, 1 और 6 7, 7 में 8 जमा करें तो 7 और 7 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल का आया 1। फिर ये 1, ये 5 में जमा करेंगे, 1 और 5 6, 6 और 7, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 13 के 3 हासिल का आया 1। तो ये 1 और 6 7, 7 के 7। अब यहाँ लास्ट में 3 बचा तो 3 के 3। अब ये बॉक्स था तो हमने आसानी से इसमें रख दिया, लेकिन ये बॉक्स आपको समझने के लिए दिखाया गया है कि किस तरह से रकमों को तरतीब से लिखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, आप 5,612, ठीक है। अब इसको तरतीब से लिखना है, आसान तरीका है। इकाई मकाम पे जो लिखा है उसको इकाई के नीचे लिख देना। ये 2 के 2, दाही में 9, सैकड़े में 8, हज़ार में 7, 10,000 में 6 और लाख में 3, ठीक है। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है तो आपको अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ सिफर सिफर आप लिख सकते हैं, यहाँ जमा की अलामत, ठीक है। वैसे इसको हल करना है। 2 और 2 4, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का आया 1, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 के 5 हासिल का आया 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल का आया 1, 1 और 6 कितने होते हैं? 1 और 6 कितने होते हैं? 1 और सिफर 1 ही होता है, और ये 6 मिला दिया तो यहाँ पर 7,
0 और 3 मिलाया तो 3। तो कितना जवाब आया ये? अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो गिनती का इस्तेमाल करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इधर देख लो समझने के लिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3,73,504। ये बॉक्स मैंने इसलिए आपको यहाँ पर दिखाया हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से तरतीब में लिखा जाता है। इकाई के अदद के नीचे इकाई का अदद, दाही के अदद के नीचे दाही का अदद, सैकड़े के अदद के नीचे सैकड़े का अदद। अब यहाँ पर 4 इंची था और ये कितने इंची है? 6 इंची। 4 इंची अदद की 6 इंची अदद से जमा करें हमने, ठीक है। अब 5 इंची अदद की 3 इंची अदद से आ सकता है आपको, 6 इंची अदद की 7 इंची अदद से जमा करना आता है। तो इस तरीके से आपको तरतीब से ये सवालात लिखना है, तरतीब से आपको रकमों को लिखना है। तरतीब से अगर हम इन सवालात को लिखेंगे तो हमारा जवाब भी सही आएगा। ये देखे थे हमने अभी तक जमा की कुछ मिसालें, और इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग तफरीक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जब तक कि आपको आप घर काम में जो सवालात दिए जाएंगे वो सवालात आप पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको उन सवालात हल करने में कोई दिक्कत पेश आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या इस यूट्यूब के लिंक में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ग्रुप के ज़रिए, या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। दूसरी बात, आपको जो सवालात दिए जा रहे हैं वो सवालात आप हल करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में अगर इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम तफरीक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। उम्मीद है आज के जो लेसन में हमने सवालात हल किए आप तमाम तलबा और तालिबात को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन सवालात या इस सबक के मुतालिक जमा और तफरीक, आज का जो टॉपिक था हमारा जमा, इस सबक के मुतालिक अगर आपको कुछ सवालात पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कोई मिसाल समझ में नहीं आई तो आप इसके मुतालिक भी सवालात कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया बेटा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो सवालात आज हल किए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी मिसालें हमने आज हल किए, इसी मिसालों पर मबनी कुछ सवालात आप घर काम के तौर पर हल करके लाएंगे। जिस तरह से हमने आज मिसालें हल की उसी के जो पर उसी तरह से कुछ सवालात दिए गए हैं जो आपको घर काम में हल करके लाना है, हल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर। कुल टोटल 16 सवालात आपको दिए जा रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बयाज में इन सवालात को हल कीजिए। तरतीब से लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ हल करना है, ठीक है।